Hello guys, welcome back to my channel Study Life 6999. Okay, so let's start with a new unit, that is cell, the unit of life. We have already started with this unit, but we did first cell cycle and cell division, so now we will do the previous lesson. Okay, that is cell, the unit of life. Before that, we will read something. Of course, I have not done the reading of cell cycle and cell division. Yes, I have not done the reading of yours. This reading I want to do because I am myself doing it from a PDF. So I won't do this reading. If I do, then I will do it in the end only. So I won't do it now. I'm doing it on the PDF only, and I will upload it after this chapter is over. So this NCERT reading is pending, which I will do very soon, and this is the cell, the unit of life, which we are going to do now, NCERT reading. So this will be in two parts. Today's part will be till cell membrane. So let's start. Before that, we will read here. G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. His discovery of triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of allowed conformations of proteins through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology. He was born on 8 October 1922 in a small town not far from Cochin on southwest coast of India. His father was a professor of mathematics at the local college and thus had considerable influence in shaping Ramchandran's interest in mathematics. After completing his school years, Ramchandran graduated in 1942 as top ranking student in BSc Honours Physics course of University of Madras. He received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramchandran met Lewis Pauling and was deeply influenced by his publications on models of alpha helix and beta structures that directed his attention to solve the structure of collagen. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. So basically यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि उन्होंने डिस्कवरी की ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर की कोलाजन के, बस। और उसके बाद किसने इन्हें इन्फ्लुएंस किया, तो वो थे लुइस पॉलिंग, बस। उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं इधर। और ये थे कौन? रामचंद्रन। नथिंग मोर इज़ इम्पॉर्टेंट एज ऑफ हियर। सो कोलाजन का इन्होंने डिस्कवर किया। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, बस। ये G.N. रामचंद्रन है, एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेसन नाउ। फटाफट पढ़ा दूँगी, रिविजन है तो मैं समझाते नहीं बैठूँगी। मतलब मैंने समझाते बैठी थी सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, आधा घंटा बोल के 1 घंटा हो गया समझाते। मैं पूरी कोशिश करूँगी नहीं समझाने का, बट जो बच्चे आते हैं ना, जो वन शॉट देखते हैं सिर्फ, तो उनके लिए मैं समझाने बैठी और मुझे लगता है हाँ समझाना चाहिए यार। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम है और कल एग्ज़ाम है और वन शॉट दिख रहे, तो फिर कैसे होगा? इसलिए मैं समझाती हूँ, बट आई विल ट्राई नॉट टू make you guys understand, because this is one shot. So let's start now. So chapter 8, cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living, or what is that inanimate thing that does not have which a living thing has?
इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द cell, in all living organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called as unicellular organisms, while others are composed of many cells like us are called as multicellular organisms. Okay, so this is the intro of the lesson and यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं दो वर्ड्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल which is a unique character of living organisms. What is a cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of their life. Anything less than a complete cell, then a complete structure of cell does not ensure independent living. अगर एक सेल भी हो तो वो इंश्योर करता है, वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है, पर अगर एक सेल भी ना हो, एक सेल से कुछ भी अगर कम हो, तो वो इंश्योर नहीं करेगा आपकी इंडिपेंडेंट लिविंग को. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. दिस इज एन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद आता है हेंस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये इसका रीजन है. ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग बिकॉज सेल ऐसे आएगा, सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है, तो ये असर्शन एंड रीज़न आएगा और आंसर ए होगा अगर ऐसा आया तो. ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के और परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और उनके फंक्शंस भी पूरे कर सकते हैं. तो एक सेल ज़रूरी है. उसके बाद आता है एंटन वॉन लेवेनवुग फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है. एंटन वॉन लेवेनवुग जो थे उन्होंने एक लाइव सेल देखा, वेयर एज अ डेड सेल वॉज सीन बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने एक डेड सेल को देखा था, डेड सेल को देखा था. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है वो ब्राउन कलर का होता है. न्यूक्लियस इज ऑफ ब्राउन कलर. तो किन्होंने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया होगा. तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल. तो सेल के बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद पता चल गया था. उसके बाद हम आते हैं सेल थ्योरी पे. इन 1838 मैथिस शेल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट. ये याद रखना 1838, ऐसा पूरा याद ही रख लेना. इन 1838 मैथिस शेल्डन, इन 1839 शॉन, थियोडे शॉन. ठीक है, ऐसे ये पूरा याद रखना पड़ेगा तुम्हें इस टाइम. क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है कि शेल्डन जर्मन बॉटनिस्ट था या नहीं, तो ये पूछा जाता है. तो 1838 मैथिस शेल्डन अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स and observe that plants are composed of different kinds of cells which form tissues of plant. तो इन्होंने सिर्फ इतना डिस्कवर किया था. इन्होंने सेल वॉल के बारे में कुछ नहीं बोला. इन्होंने सिर्फ सेल्स के बारे में बोला था जो कि टिश्यू फॉर्म करते हैं. तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं इसके बारे में, तो ऐसा नहीं था. उसके बाद एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर शॉन in 1839 a British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is known as plasma membrane today. तो उन्होंने एनिमल सेल के बारे में भी देखा, प्लस दे ऑल्सो सॉ अबाउट प्लांट सेल. ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन ही स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स. ठीक है,
though Schwann studied on both. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that bodies bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. तो इसमें भी गौर करने की ज़रूरत है. क्यों? बिकॉज शॉन ओनली सेड दिस. यहाँ पे हाइपोथेसिस किसने दी है? सिर्फ शॉन ने दी है, इसने नहीं दी है. क्या बोलते हैं, शेल्डन ने. ये जो शेल्डन है ना, उसने नहीं दी है. सादा से ज़्यादा काम हाइपोथेसिस का देने का काम भी शॉन ने ही कर रखा है. और हाइपोथेसिस उसने प्लांट और एनिमल दोनों में दी है कि वो सेल्स से बने हुए होते हैं. पर जब ये हाइपोथेसिस दी थी और जब फॉर्मुलेट कर दी इन लोगों ने, दोनों ने थ्योरी फॉर्मुलेट करी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब इन्होंने थ्योरी फॉर्मुलेट करी तो क्या हुआ? तो कुछ ऐसा हुआ कि थ्योरी को माना नहीं गया. क्यों? क्योंकि बीच में आ गए थे रुडोल्फ विरचाउ. वो बड़े झगड़ालू इंसान थे, उन्होंने आके चाव चाव करना चालू कर दिया. किसने? रुडोल्फ विरचाउ. शेल्डन एंड शॉन प्रपोज्ड टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल theory. This theory, however, did not explain that how cells were formed. So Rudolf Virchow first explained that cells divided and new cells were formed from the pre-existing cells. Omnicellular, acellular. तो इसमें तुम्हें क्या याद रखना है कि इन्होंने चाव किस बारे में की कि सेल्स की तो तुमने बता दिया, सेल्स होते हैं, पर एक सेल बनता कहाँ से? तो एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है. ओमनिस सेलुलर, ई सेलुलर. इस पे क्वेश्चन बड़ा बनता है. ठीक है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस मॉडिफाइड कर दी शॉन की और शेल्डन की टू गिव द सेल थियोरी अ फाइनल शेप. हाइपोथेसिस अभी शॉन और शेल्डन की हो गई है, तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है एनसीईआरटी की. ठीक है. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शेल्डन एंड शॉन. इन्हें एक्चुअली सेल थ्योरी बोलना चाहिए था, क्योंकि आगे भी इन्होंने यही बोला, टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and products of cells, and cells are formed from the pre-existing cells. तो ये मॉडिफाई करी गई थी. क्यों? और इसको फाइनल शेप दे दिया गया था. क्या दे दिया गया था? फाइनल शेप. कि ऑल ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने रहते हैं और प्री एग्जिस्टिंग. ओमनिस सेलुलर, ई सेलुलर. ये कब दिया था? 1855 में. और वो मैथिस शेल्डन ने कब किया था काम? 1838 में. और शॉन ने 1839 में. शॉन था एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और मैथिस शेल्डन था एक जर्मन बॉटनिस्ट. ठीक है. तो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो. उसके बाद आता है एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. तो आपने देखा होगा, आपके 10th में एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे उनमें इन चीज़ों को. तो क्या देखना रहता है? इनमें सेल का स्ट्रक्चर देखना रहता है. लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. द ओनियन सेल विच इज टिपिकली plant cell has distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. तो बोल रहा है कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है. एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है. बस इसको एनालाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये वैसे भी. ठीक है. फिर द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज, एक मिनट रुकना. प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स outer boundary and just within it is the cell membrane. हाँ ठीक है. The cells of human cheek have an outer membrane as delineating structure of the cell. मैंने भी वही बताया आपको. उसके बाद inside each cell is dense membrane bound structure called nucleus. तो ये जो dense membrane bound structure बोल रहा है ना, तो ये न्यूक्लियस ही होगा. और ये न्यूक्लियस यूकैरियोट्स का. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है. अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होता है? बहुत इजी है. प्रोकैरियोट्स होता है जिनमें जो भी चीज़ें पड़ी होंगी ना अंदर सेल के, उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी. मतलब वो किसी मेम्ब्रेन कवरिंग से गिरे नहीं होंगे. जैसे हम स्किन से गिरे तो वो वैसे किसी भी स्किन वगैरह किसी मेम्ब्रेन से गिरे नहीं होंगे. ठीक है. वेरेज यूकैरियोट में सारी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड होगी, मेम्ब्रेन से घिरी होंगी. जैसे कि यहाँ पे देखो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड. तो मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, वो तो अलग है, पर ये यूकैरियोट्स की न्यूक्लियस की बात हो रही है. तो ये याद रखना इज़ इम्पोर्टेंट. बस उसके बाद वी विल गो हियर.
Inside nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है उसकी बात चल रही है. तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ नहीं होता, क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए. तो न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए. सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक. तो मैंने किस भाषा में अभी वही बताया आपको. Whereas cells that lack membrane bound nucleus are called as prokaryotes. तो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड है वो यूकैरियोट, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस जो भी बोलो, वो प्रोकैरियोट. ठीक है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है. ठीक है. उसके बाद इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल. तो दोनों में, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, दोनों में साइटोप्लाज्म होती है. तो इन बोथ साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल. तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, बोथ प्लांट्स में और एनिमल्स में. वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट. तो सारी रिएक्शंस इसमें ही होती है, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली. तो ये बेसिकली हो गया न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में. तो अब बचता है, मेम्ब्रेन के बारे में भी हो गया, अब बचता है ऑर्गेनेलीज के बारे में, यानी कि बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में. बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज. मेम्ब्रेन बाउंड होती है तो ये यूकैरियोटिक की है अगेन. लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, microbodies, vacuoles, prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. अगेन वही बात चल रही है. ठीक है. उसके बाद क्या आता है, उसके बाद राइजोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल सेल्स. प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, ये बड़ा ऑप्शनल है. यूकैरियोटिक में एक ही ऐसा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, और एक रहता है जो कि यूकैरियोटिक के एनिमल ग्रुप में रहता है. मतलब हम जो है ना, हम उनमें और एक रहता है वो कि सेंट्रियोल, जो आगे हम पढ़ेंगे. अब देखो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल द सेल्स, both eukaryotic as well as prokaryotic. Within the cell, ribosomes are not only in cytoplasm but also within the two organelles, जो कि होता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर पे. ठीक है. तो राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म ही नहीं मिलते. राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है. ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, वो यूकैरियोट्स का एक ग्रुप है. यूकैरियोट्स के ग्रुप आपको पता होंगे, राइट? प्लांट्स, एनिमल्स, फिर बैक्टीरिया, मेनली बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप थिंग्स, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, इनको छोड़ के सारे यूकैरियोट्स है, सारों में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है. तो जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उनमें राइबोसोम मिलता है उनके अंदर. फिर रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ टाइप का होता है उस पर मिलता है. क्लोरोप्लास्ट तो सब प्लांट्स में ही मिलता है, तो उस पर भी मिल जाता है. ठीक है. तो ये बताने की कोशिश करिए जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं तो बल्कि यहाँ भी होते हैं. ठीक है. तो उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड एज सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिविजन. ये मैंने आपको बता दिया आई गेस. ठीक है. और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है एनिमल सेल्स में, सेंट्रोसोम, जो कि इसमें मदद करती है सेल डिवीजन में मदद करती है. सेल बड़े डिफर करते हैं उनके साइज़ वगैरह में और एक्टिविटी में, जो भी है. फिर जैसे कि एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है. इतना ही. इसके बारे में आप ना पूरे अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे, फिर भी यहाँ दे रखा है तो वी विल रीड इट ऑफ कोर्स.
जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एक तो इसको बाहर कवरिंग भी नहीं होती, ये लैक करता है उसकी कवरिंग, ऊपर से ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है, तो बड़ा मतलब रेजिस्टिव है। तो ओनली 0.3 साइज़ का, लेंथ भी बड़ी छोटी है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े शेप एंड साइज़ में 3 to 5 होते हैं। तो ये 0.3 to 5 था, ये 3 to 5 है। जो अभी उसके बाद सेल्स की बात करी गई है, जैसे कि लार्जेस्ट आइसोलेटेड एग सेल जो कि होता है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, आइसोलेट किया जाता है मतलब रखा जाता है अलग से। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिच का सेल वो सबसे लार्जेस्ट है। अमॉन्ग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल, उनकी ये कर लो 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, फिर नर्व सेल वो लॉन्गेस्ट सेल्स रहती है नर्व सेल। फिर सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप उनकी डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉलमिनार हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है जैसे कि WBCs में रहती है। तो बड़े बड़े शेप्स हैं इनके, डिस्क लाइक, फिर रॉड लाइक, बड़ी बड़ी शेप्स होती है। क्यूबॉइड, रॉड लाइक यानी कि क्यूबॉइड, फिर कॉलमिनार। फिर द शेप ऑफ सेल में वैरी विद द फंक्शन, ये अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन ही रहता है। अब लॉन्गेस्ट क्यों हो रही है नर्व सेल्स की? क्योंकि उन्हें स्टिमुलेशन जो मिला है वो आगे तक पहुंचाना है यार। ठीक है, तो स्टिमुलाई जो मिली है वो आगे तक उन्हें पास ऑन करने के लिए उन्हें वही लॉन्गेस्ट वैसा ही पकड़ना होना पड़ेगा। देखो सब जगह पे उनके कनेक्शंस होने चाहिए, पूरे बॉडी में फैलने चाहिए, तभी तो हमें रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी मिलता है। इसकी वजह से तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सेल्स आर वैरिंग इन देयर शेप। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन होगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, माइकोप्लाज्मा जो रहता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का रहता है और वो छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उसको वॉल भी नहीं होती। बैक्टीरिया 3 to 5 का होता है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का रहता है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर का रहता है। RBC 7 माइक्रोमीटर की रहती है। वाइट ब्लड सेल्स की बात नहीं कही गई है, इनका शेप राउंड एंड बाइकॉनकेव रहता है वैसे, और इनका जो शेप रहता है वो एमीबॉइड रहता है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। उसके बाद क्यूबॉइडल का लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ये भी आपको पता होगा। ये क्या करते हैं, ये कवरिंग देते हैं। फिर नर्व सेल्स भी लॉन्गेस्ट होती है। ट्रैकियड भी एलोंगेटेड, ये प्लांट्स की बात कर रहा है। और ये राउंड एंड ओवल मीजोफिल्स, ये भी सबको पता है, ये डिवाइड होती रहती है, मतलब बहुत इनकी टेंडेंसी डिवाइड करने की है। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। मैंने अभी आपको नाम बताया जस्ट। बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है और पीपीएलओ होता है। अभी पीपीएलओ क्या है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, आपको याद रखना चाहिए। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells। ये तो होना ही था, इतने छोटे तो मल्टीप्लाई तो करेंगे ही ना यूकेरियोट को तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, ये भी वैरी करते हैं ग्रेटली, जितने बैक्टीरिया तो इतने वैरी करते हैं, मतलब इतने वैरी करते हैं ना, बहुत वैरी करते हैं। कितने अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, 4 बेसिक तो यही टाइप्स है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। वो है बैसिलस यानी कि रॉड लाइक, कोकस यानी कि स्पेरिकल, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड और स्पिरिलम यानी कि स्पाइरल शेप। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of functions and shapes। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जो चीज़ें होती है अंदर उनके, वो सेम रहती है, जो फंडामेंटली तो सिमिलर रहती है, दो उनकी शेप्स कितने भी अलग हो जाए। अरे यार, इंसान के अंदर की चीज़ें, इंसान भी कितने अलग अलग प्रकार के दिखते हैं, पर अलग अलग हैबिट्स होती है, पर उनके अंदर की चीज़ें तो सेम ही है ना। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये मैंने आपको पहले ही बताया आई गेस। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, बस माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है।
तो अब मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, सेल को कवरिंग होती है भाई। प्लांट्स जो होते हैं ना, ये प्रोकैरियोट्स की बात फिर चल रही है, और ये यूकैरियोट्स की बात चल रही है। यूकैरियोट्स में भी मेन प्लांट्स और इसे ना थोड़ा छोटा कर देते हैं हम लोग। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें सेल मेम्ब्रेन भी रहती है, सेल वॉल भी रहती है। यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। तो ये बड़ा अच्छा बताया है मैंने, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इतना। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. Well-defined nucleus नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कवरिंग नहीं होती ना, naked रहता है वो। The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside द जीनोमिक डीएनए, जिसे कहा जाता है प्लास्मिड। द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लास्मिड्स। तो एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है। एक तो इनका सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है, और जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो भी सेम सिंगल यही होता है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। पर वो कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, वो न्यूक्लियस के बाहर रहता है। ये यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है, सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स, जो कि उनको रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लास्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये प्लास्मिड जो होता है ना, एज अ वेक्टर भी काम करता है। ये हम इसमें पढ़ेंगे बायोटेक 12th में, ठीक है। तो इसमें भी मदद करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वो यूकैरियोट्स में भी मिलती है, ठीक है, whereas प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों जगह पे होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। यूनिक होता है प्रोकैरियोट्स में, जो कि है इंक्लूजन्स, ठीक है यार। स्पेशलाइज्ड, ये भी यूनिक है इनके पास। A specialized form of cell membrane called mesosome is a characteristic of prokaryotes. They are essentially enfoldings of the cell membrane. Specialized क्या? Specialized differentiated form of cell membrane. जो cell membrane जो रहती है ना, मतलब अंदर वाली, वो ऐसे फोल्ड हुई मिलती होगी, नहीं मिलती है, ऐसी फोल्ड हुई मिलती है। और ये है सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये मिलती है फोल्ड हुई, ठीक है। तो इन्हें मेसोसोम कहा जाता है। ये जो है ना, ये जो है ना, ये मेसोसोम है अंदर वाली, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। और एक लेयर होती है ऐसे बाहर, बैक्टीरियाज में होती है ये, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। बट उसके बारे में हम बाद में ही पढ़े तो अच्छा है। तो अब हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा अब तक। तो हम लोगों ने अब तक पहले देखा हम लोगों ने सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूनिसेलुलर क्या क्या करते हैं। तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और खुद के फंक्शन खुद परफॉर्म कर सकते हैं। एसेंशियल एक सेल होना ही काफ़ी हो जाता है इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। अगर एक से कम है तो फिर नहीं, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकती,
ठीक है। सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। फिर लाइफ सेल किसने किया? एंटन वॉन लीवेनबुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस को किया। फिर 1838 में मैथिस शेल्डन आए जिन्होंने सिर्फ प्लांट सेल्स के बारे में बताया और टिश्यू, प्लांट के टिश्यू बनाते हैं उसके बारे में बताया। वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। उसके बाद कौन आए? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थॉडे शॉन इन 1839। इन्होंने एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों के बारे में बताया। एनिमल सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया। फिर शॉन वही यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल होती है प्लांट्स में। फिर बाद में शॉन ने प्रपोज की हाइपोथेसिस कि सेल जो बॉडीज़ रहती है वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स से बनी रहती है एनिमल्स और प्लांट्स की। फिर उसके बाद शॉन और शेल्डन ने जब भी फॉर्मुलेट कर रहे थे थ्योरी तो बीच में चौ चौ करने रुडोल्फ चौ आ गए कि सेल आता कहाँ से है भाई। तो सेल आता है, उन्होंने बताया सेल कहाँ से आता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। कब बताया? 1855 में बताया। फिर उन्होंने मॉडिफाई किया सेल, ये क्या आ रहा है? He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory a final shape। और सेल थ्योरी आज कैसे मानी जाती है? सेल्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स ऑफ जो बॉडीज़ जो होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की वो प्रोडक्ट्स होती है सेल्स की और सेल्स से बनी रहती है। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद हम आते हैं सेल के ओवरव्यू पे। तो हम लोगों ने क्या देखा? एक चीक सेल लिया, उनके मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। क्या? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में भी हम लोगों ने यूकैरियोट में देखा क्योंकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। यूकैरियोट में हम लोगों ने प्लांट में देखा, प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिर्फ। उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। तो प्रोकैरियोट में क्या? न्यूक्लियस। उसके अंदर यूकैरियोट में क्या? डेंस न्यूक्लियस। उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वेराज प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस, वो भी नेकेड होता है। खैर उसके बाद हम बात में करेंगे क्योंकि बाद में ही दिया है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज रहती है उसके बाद। ठीक है। ऑर्गेनेलीज की बात की, प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो दोनों में होती है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में होते हैं उनमें, उस फिर रफ ईआर पे प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म में तो होती ही है। उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात की, तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? तो साइटोप्लाज्म जो है ना मेन एरिना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। इसमें ही एक्टिविटीज़ होती है जो भी होती है, रिएक्शंस वगैरह, और ये ऑक्यूपाई करता है सेल की मैक्सिमम वॉल्यूम को। ठीक है। उसके बाद आता है चलो आगे। हाँ, एनिमल्स में भी ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। राइबोसोम तो होती ही है, पर एनिमल्स में एक स्पेसिफिक भी होती है जो कि होती है सेंट्रोसोम, जो बड़ी मदद करती है सेल डिवीजन में। फिर सेल कैसे डिफर करते हैं, उनके शेप, साइज में वगैरह वो बताया। तो माइकोप्लाज्मा 0.3 स्मॉलेस्ट होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स भी होती है। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट होती है, ट्रैकियड होती है, मीजोफिल सेल्स होती है। फिर डिस्क शेप होती है, पॉलीगनल होती है, कॉलमिनार होती है, ओवल होती है, क्यूबॉइड होती है, इरेगुलर होती है। फिर जो शेप होता है ना वो वैरी करता है, जैसे कि उनका फंक्शन हो उनको परफॉर्म करने का। अब जब उनका फंक्शन दो अलग अलग हो परफॉर्म करने का, शेप भी वैरी कर रही हो, पर उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब हम बैक्टीरिया की बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि शेप इतनी अजीब गरीब हो, बैक्टीरिया के बहुत सारी शेप्स में प्रेजेंट हो, फिर भी ये जो उनकी शेप पे है ना, उनके अंदर की चीज़ें डिपेंड नहीं करती। अंदर की चीज़ें इंसान के सेम ही रहती है, भले उनकी हैबिट कितनी भी अलग अलग हो। तो सब बैक्टीरियाज में वही रहने वाला है अंदर, शेप कैसी भी हो, ऐसी शेप हो ऐसी शेप हो, अंदर की चीज़ें सेम रहने वाली है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें हम लोगों ने क्या देखा कि बैक्टीरिया होती है, इनके पार्ट साइनोबैक्टीरिया होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, पीपीएल मतलब प्लूरो निमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर, मल्टीपल,
मल्टीप्लाई रैपिडली देन यूकेरियोट। क्यों? क्योंकि इनकी शेप बड़ी छोटी होती है। शेप छोटी भी होती है पर बहुत तरह की होती है। कैसी कैसी? तो बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी तरह की शेप होती है। और ये तो मैंने आपको उसके बाद का बता ही दिया कि फंडामेंटली तो सिमिलर रहता है, इवन दो उनकी वाइड वैरायटी ऑफ रहती है शेप्स एंड फंक्शंस। उसके बाद हम आते हैं, मैंने कुछ किया क्या? ओके। उसके बाद हम आते हैं प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पे। तो उनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सिर्फ माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सब में होती है, मतलब सेल माइकोप्लाज्मा को सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो इनका न्यूक्लियस नेकेड रहता है। फिर इनके अंदर एक डीएनए रहता है जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है और स्मॉल सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर भी रहता है और सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। सिंगल मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम से ऐसा सर्कल है, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैनी बैक्टीरिया हैव सर्कुलर। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर भी बैक्टीरिया होता है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया नहीं, बाहर भी डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, वो होता है प्लाज्मिड। अब ये क्यों होता है एक्स्ट्रा डीएनए? क्योंकि वो उनको यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर, वो रेजिस्टेंस, अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आ गई या फिर उसे वेक्टर की तरह काम करना है, फॉरेन डीएनए में घुसना है, उसे रेजिस्टेंस देना है, ये बायोटेक में काम आता है। तो ये सारी चीज़ों में बड़ा काम आता है ये प्लाज्मिड, और ये रेजिस्टेंस देता है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स से। मतलब जैसे कि इनका ये कवर्ड नहीं है अभी, जो ओरिजिनल डीएनए है, न्यूक्लियस कवर्ड ना होने की वजह से कोई भी अंदर आ सकता है, राइट, इजीली। मतलब इतनी कवरिंग नहीं है, इतनी सेफ्टी नहीं है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने के लिए इसलिए और एक एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो कि उन जिसमें तो रेजिस्टेंस भी होता है, जो आए तो ये रेजिस्टेंस मतलब छोड़ दे, जैसे कि उससे जो आ गया है वो मर जाए, तो ऐसा कुछ होता होगा। हमें इतना इंटीरियर में जाना नहीं है। उसके बाद क्या था? उसके बाद था राइबोसोम, इनमें प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में रहते हैं प्रेजेंट। फिर डीएनए इज़ यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांस, ये मैंने बता दिया आपको, फॉरेन डीएनए में जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनेलीज, और कोई भी नहीं रहती है इसके अंदर। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट हियर। फिर इनकी जो स्पेशल यूनिक फॉर्म, यूनिक क्रिएचर्स है प्रोकैरियोट्स में, वो है इंक्लूजन्स और मीजोसोम्स। यस, यही दो, एक तो इंक्लूजन है और एक मीजोसोम है और एक इंक्लूजन है, बस यही दो है, ठीक है। Now we will come to next, which is cell envelope and its modifications. The most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemical complex cell envelope. जो most of the prokaryotic cells रहते हैं ना, एक मिनट मैं पानी पी लूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, हैव अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो जो बैक्टीरियल सेल्स रहती है ना, अभी हम बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेनली उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया रहती है ना, इनकी केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनकी सेल एनवेलप 3 चीज़ों से बनी रहती है, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी थी। तो द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, द आउटर ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर्स रहती है, ठीक है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, पहली कौन सी रहती है? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल रहती है और उसके बाद अपनी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। दो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, पर उनकी जो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की ही काम है, ठीक है।
उनका फंक्शन डिफरेंट है। कैसे कैसे डिफरेंट है तो पता चलेगा। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ सेल एनवेलप्स। तो जैसे उनकी सेल एनवेलप है ना, सेल एनवेलप क्या है, तो तीनों स्ट्रक्चर टुगेदर जब हम करते हैं तो उसे सेल एनवेलप कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी सेल एनवेलप के बेसिस पे इनको 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, 2 ग्रुप्स में। वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। कैसे, अगर वो स्टेनिंग ले रहा है, उनके रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग में अगर वो स्टेनिंग ले रहा है, द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय ग्राम, दोज दैट टेक अप स्टेन gram stain are gram positive and those who do not take up the gram stain are the gram negative bacteria। ठीक है, तो glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria। glycocalyx differ करता है उनके composition और thickness में। डिफरेंट बैक्टीरिया में उसकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इट कुड बी अ लूज शीट, ग्लाइकोकैलिक्स लूज भी हो सकता है या फिर थिक और टफ भी हो सकता है। लूज भी हो सकता है या फिर थिक और टफ भी हो सकता है। द सेल वॉल, अगर वो लूज है तो उसे स्लाइमी लेयर कहा जाता है। कम ऑन, आई गेस यू गाइस नो दिस। अगर वो लूज है तो उसे कहा जाता है स्लाइम लेयर, वेयर एज अगर वो थिक है, टफ है, तो वो कैप्सूल की तरह होता है। ठीक है, तो कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ऑफकोर्स वो सपोर्ट के लिए होती है सेल वॉल, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है। तो ये जो सेल वॉल रहती है ना, तो ये जो सेल वॉल रहती है ना, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि उसे प्रिवेंट करता है बर्स्ट होने से या फिर कोलैप्स होने से। सिंपल एज दैट। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो बड़ी सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्लाज्मा सिलेक्टिवली, इस वर्ड में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आधे सिलेक्टिवली नहीं बोलते, आधों को लगता है सब ले रही है। नहीं भाई, वो सिलेक्टिवली ही लेती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने दे सकती है। ठीक है, और सेल वॉल जो रहती है वो सबको अंदर आने देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल है, पर जो सेल वॉल है वो सिलेक्टिवली परमेएबल नहीं है, वो सिर्फ परमेएबल है, सेमी परमेएबल है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ मैं, सेल वॉल जो है वो सेमी परमेएबल। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, सेमी परमेएबल। क्यों बड़ा डिफरेंस है? तो यार क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल और सेमी परमेएबल बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, क्यों अलग अलग चीज़ें? सिलेक्टिवली यानी कि सिर्फ चुनी ही चीज़ों को अंदर आने देगी, सेल वॉल सब आता है। फिर देखो, सेल वॉल ऐसे होती है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ग्लाइकोकैलिक्स तो स्लाइम कैप्सूल, उसका अलग ही धंधा चल रहा है। सेल वॉल सबको अंदर आने देगी, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली यानी कि वो कुछ को ही अंदर जाने देगी। तो यहाँ पे चेक पॉइंट है। तो चेक पॉइंट क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। सिलेक्टिवली परमेएबल है तो वो सबको अंदर आने नहीं देगी। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये क्यों बोल रहे हैं इंटरैक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड? क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल ही नहीं होती है, तो यार यूकेरियोट्स में तो भाई वही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही चेक पॉइंट होती है और वो बाहर से भी इंटरैक्ट कर रही होती है। दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकेरियोट्स। इनका प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स का स्ट्रक्चर सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेम। व्हाट इज़ नॉट सेम? फिलामेंट इज़ नॉट सेम। फिलामेंट बड़ा ही डिफरेंट है दोनों में। जो फिलामेंट है ना वो बड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है स्पेशल चीज़ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द
सेल एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फॉर्म हुई है। दीज एक्सटेंशन इन फॉर्म ऑफ वेसल्स, हाँ ये मिलती है वेसल्स के फॉर्म में, ट्यूब्स के फॉर्म में, या फिर लैमेले की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेसल्स की फॉर्म में, ट्यूब्स की फॉर्म में, या फिर लैमेले की फॉर्म में। ठीक है, या फिर लैमेले की फॉर्म में। याद रखना, वेसल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले एक साथ ही याद हो जाता है। उसके बाद दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, तो इनके बड़े काम है। कैसे याद रखना है? देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होके मेसोसोम बन गई है अभी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके मेसोसोम। अब इसके बाहर है सेल वॉल, तो ये क्या करेगी? देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन भी करेगी। ठीक है, उसके बाहर सेल वॉल रहती है तो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगी। अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी मदद करेगी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी कौन अंदर आना चाहिए या कौन नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर न्यूक्लिया उसके लेवल का भी काम करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, क्योंकि यही डिसाइड कर रही है ना कौन अंदर आएगा। इन तीन हो गए याद। और क्या मदद करती है? और क्या क्या मदद करती है? और बाकी सारे ऑर्गेनेलिस का काम इस पे थोप दो। क्या? तो रेस्पिरेशन, सेक्रीशन प्रोसेस, सारा यही कुछ करने वाली है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल ही नहीं है। सरफेस एरिया बढ़ाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर एंजाइम, इस एंजाइमेटिक कंटेंट भी इसके पास ही है सारे। इन प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो रहती है, मेसोसोम्स रहती हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन मेसोसोम तो होती है, पर और भी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो जो कि होते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्यों होती है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बड़े कलर के होते हैं, तो उनमें कलर कहाँ से आएगा? तो ये इसी एक्सटेंशन से आता है, जिसका नाम होता है क्रोमैटोफोर्स। तो क्रोमैटोफोर्स जो रहते हैं ना, वो बड़े मदद करते हैं। ठीक है, तो मैं रखूँ या इरेज कर? रख ही लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे अंडरलाइन करते थोड़ा। साइनोबैक्टीरिया, अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, क्रोमैटोफोर्स जिनमें पिगमेंट्स होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर है ये। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यार? बैक्टीरिया मोटाइल भी रहती है, नॉन मोटाइल। ये तो सेम लाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साइनोबैक्टीरिया में भी लिखी है कि ये मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल। अब मोटाइल है तो इसके पास यार फ्लैजिला होगा, सीलिया तो होगा ही होगा, फ्लैजिला भी होगा। अब नॉन मोटाइल है तो ऐसा नहीं कि सीलिया नहीं होगा, सीलिया होगा। सीलिया क्यों लगता है? सीलिया अंदर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें उनके मूवमेंट्स के लिए लगता है, फ्लैजिला तो खुद के मूवमेंट के लगता है। अब नॉन मोटाइल है मतलब खुद मूव नहीं कर सकता, तो खुद मूव नहीं कर सकता तो फ्लैजिला नहीं होगा, पर उसके अंदर चीज़ें तो है छोटी छोटी, तो सीलिया होने की प्रोबेबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जो बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ दे आर मोटाइल then they have a thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in number of arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts, filament, hook और basal bodies, whereas वहाँ का filament का जो structure है वो बड़ा different है। ठीक है, yes, the filament is the longest portion and extends from cell surface to outside. जो फिलामेंट होता है ना, बड़ा लॉन्गेस्ट पोर्शन रहता है फिलामेंट, और वो बाहर तक चला जाता है। मतलब वही, वो गड़ा हुआ नहीं रहता और वही मदद करता है मूवमेंट में, सेल सरफेस से बाहर तक जाता है। अब फिलाई के अलावा जो चीज़ें रहती है वो और रहती है, जैसे कि पिलाई और फिमरी। तो पिली क्या होती है? वो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहती है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ये रहा। और ऑल्सो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डो नॉट प्ले, हाँ ये मोटिलिटी में बिल्कुल मदद नहीं करती दोनों, ये मैं बताती हूँ बाद में क्यों नहीं करती। ठीक है, तो जो पिलाई होती है ना, वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स रहती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बनी रहती है। कौन से? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी रहती है। वेराज फिम्ब्री जो रहती है ना, वो स्मॉल इस तरह से फिम्ब्री के जैसे छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं, जो कि
स्प्राउट ऑफ कर रहे रहते हैं सेल से। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ये बैक्टीरिया है, ये सेल सरफेस है इसके अंदर का, और ये बाहर का आउटर सरफेस। तो फ्लैजिला तो ऐसे आएगा, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ये बड़ी बन गई फ्लैजिला। अब पिली जो रहती है ना वो ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहती है, वेरास जो फिमरी जो रहती है ना वो ऐसी छोटी 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 स्ट्रक्चर्स रहती है। तो इजीली पहचान पाओगे कौन सी क्या है और कौन सी क्या है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रहती है। फिमरी जो रहती है वो बड़ी छोटी रहती है, फिमरी की तरह रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या काम करती है, तो ये काम करती है बैक्टीरिया को अटैच करने का किसी रॉक से, ताकि पानी की लहर भी आ गई तो बैक्टीरिया उड़ के ना चला जाए भाई पानी में, तो उसकी मदद ये करती है। तो इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो इन होस्ट टिश्यूज़। किसी होस्ट से इनको कुछ लेना है तो उनको भी चिपकने में यही मदद करती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बस, और कुछ नहीं। डन। और इनका रोल नहीं है मोटिलिटी में, क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लैजिला है ना मोटिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ प्ले नहीं करती मोटिलिटी में रोल, ये सिर्फ अटैचमेंट का रोल प्ले करती है, सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट का रोल प्ले करती है। दे डोंट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, एनी टाइप ऑफ रोल इज़ नॉट प्लेड बाय देम इन मोटिलिटी और अटैचमेंट का काम। मैं थोड़ा इसका कलर बदल देती हूँ जिससे आपको समझ आए। यस, ठीक है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज एंड वी आर डन विद प्रोकैरियोट्स। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो राइबोसोम होती है उनके अंदर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़ी एसोसिएटेड रहती है, और ऑर्गेनली नहीं है तो किससे एसोसिएटेड रहेगी, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S यूनिट्स विच प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की 2 यूनिट रहती है, तो प्रोकैरियोट्स है तो इसकी वजह से इनमें 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट रहती है, जिसकी लार्ज सब यूनिट 50S की रहती है और स्मॉल सब यूनिट 30S की रहती है, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस की ही साइट होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। क्या होता है, ये जो mRNA होती है ना, RNA होती है इनके अंदर, जो DNA होता है वो रेप्लिकेट होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बना रहता है, RNA बना देता है जिसका नाम mRNA होता है, ठीक है। RNA M टाइप का होता है, ठीक है। तो mRNA होता है ना, इसके ऊपर अगर राइबोसोम आके जुड़ जाए ना तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ये जो पॉलीसोम और राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में बड़ी मदद करते हैं। ये चीज़ हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी पता है, ये चीज़ हमको मिलेंगी 12th के मॉलिक्यूलर चैप्टर में। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। जो राइबोसोम होते हैं पॉलीसोम के, वो mRNA को प्रोटीन में ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ना, ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में बड़ी मदद करते हैं। ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यस, इतना ही है इसमें। और स्टार्टिंग में था ये, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। एक मिनट, हाँ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ना सेल की, उससे राइबोसोम एसोसिएटेड रहते हैं, बस। और इनकी लेंथ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज, बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो इजी चीज़ है आई गेस। ये नया है, ये नया है, ये नया है, ये नया है, ख़त्म।
उसके बाद हम आते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर की जो कि यूनिक कैरेक्टर होता है राइबोसोम्स में, सॉरी प्रोकैरियोट्स में, जो कि होता है इंक्लूजन बॉडीज। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, ये रिजर्व मटेरियल रहती है प्रोकैरियोटिक सेल में, आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो रिजर्व मटेरियल यानी कि जो उन्हें चाहिए आगे, तो ये बड़ी यूनिक रहती है क्योंकि उन्हें वो चाहिए ना आगे, रिजर्व करना है उनको। तो ये रिजर्व मटेरियल होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, जो कि स्टोर होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो बेसिकली रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर, इतना याद रखना चाहिए गेस। आई डोंट थिंक मोर शुड बी केप्ट इन माइंड। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो अब तक हमें 3 चीज़ें मिल चुकी है जो बिल्कुल ही मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख दूँ, पहला तो है राइबोसोम्स, दूसरा है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल कुछ भी बोल लो, तीसरा है इंक्लूजन bodies. Done. I don't think any more is there. ठीक है, मुझे नहीं लगता और कुछ है। टाइम पास हो रहा है ये बॉक्स बनाते बनाते, ये तो बन नहीं रहा है। जा, अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं बनाना। These are not bound by any membrane system and life in the cytoplasm. Example इनके important है phosphate granule, synovial granule, एक मिनट, phosphate granule, synovial granule, glycogen granule, बस इतना ही 3 एग्जाम्पल है। नाम से ही पता चल जाता है पढ़ के, ये बड़ा बड़ा सा लग रहा है तो यही होंगे। तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, और गैस वैक्यूल्स भी होती है इनके अंदर, आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया क्लासीफाई करी जाती है 4 इसमें, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब फोटोसिंथेटिक में साइनोबैक्टीरिया आती है, तो ये यू बैक्टीरिया के अंदर का क्लासिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पता चलेगी आपको। तो गैस वैक्यूल्स जो रहती है ना, वो ब्लू ग्रीन रहती है, पर्पल रहती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी रहती है। बस नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। गैस वैक्यूल्स हो गया, और कुछ बचा तो नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। उसके बाद हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। रिवीजन करवाऊंगी ये पेज के बाद, ठीक है। तो द यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो सारा बैक्टीरिया को छोड़ के सारा इसमें ही आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया को छोड़ के सब इसके अंदर ही आता है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. तो compartmentalization होती है क्योंकि मिक्स मैच नहीं होता, क्योंकि हर एक membrane bound organelle के पास हर एक organelle के पास उनका membrane रहता है, ठीक है।
फिर यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with nuclear envelope. In addition to eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. Their genetic material is also organized into chromosomes. कैसा genetic material रहता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट रहता है इनके अंदर. डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट रहता है इनके अंदर. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं ना वो सेम नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते. प्लांट से अलग अलग होता है. प्रोकैरियोट्स कैसे थे? सेम थे, फंडामेंटली तो सेम थे, वैरी कर रहे थे शेप में पर भी. प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एंड एज अ फॉर्मर. तो इनकी तो अंदर की चीज़ें भी अलग रहती है. तो यहाँ पे लिख लूँ मैं अगेन. प्रोकैरियोट्स बाहर डिफरेंट, अंदर फंडामेंटली सेम. ठीक है. whereas यूकैरियोट्स ये ठीक है. whereas जो यूकैरियोट्स रहते हैं अंदर भी डिफरेंट, बाहर भी डिफरेंट है. एग्जाम्पल तो प्लांट एंड एनिमल ही बट बहुत बड़े एग्जाम्पल है. ठीक है. प्लांट एंड एनिमल सेल्स ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है यहाँ पे. सो डन. उसके बाद all eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell walls, plastids. former यानी कि कैसे बताओ वो. फॉर्मर यानी कि पहले वाला यहाँ पे क्या है? प्लांट है. तो ये फॉर्मर है. ठीक है. फॉर्मर ये है यहाँ पे. ठीक है. तो प्लांट जो होते हैं ना इनमें क्या क्या रहता है? एब्सेंट जो रहता है ना फॉर्मर वो एनिमल्स में एब्सेंट रहता है. द फॉर्मर possess सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. ऑन द अदर साइड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल ऑल्सो. वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है सारे प्लांट्स में. ठीक है. तो ये और ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है. कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है मुझको यहाँ पे. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी. ठीक है. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अभी. तो लेट्स रिवाइज नाउ. ये देखो प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर. ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है. फिर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी रहता है और प्लास्टिड्स भी रहते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट है और प्लास्टिड्स भी रहते हैं इनके अंदर. ठीक है. तो प्लास्टिड्स क्या करते हैं? पिगमेंटेशन की काम करता है प्लास्टिड्स. वेराज इसका स्ट्रक्चर देखो कितना कॉम्प्लेक्स, कितना डिफरेंट है इससे. राइट. सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम. ठीक है. इसे इरेज कर देती हूँ मैं भी. अब जल्दी जल्दी रिवाइज करने भागते हैं. 1 मिनट पानी पी लो वापस. हाँ तो चलो यार करते हैं रिवाइज. ठीक है. तो क्या हम लोगों ने देखा? बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो बैक्टीरिया के हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में देखा, सेल एनवेलप के बारे में देखा. सेल एनवेलप 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं. दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं. अब ग्लाइकोकैलिक्स के टाइप पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं
सॉरी सेल एनवेलप के स्टेनिंग के बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेन लेता है एंड स्टेन नहीं लेता रिस्पेक्टिवली। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के इस पे हम इसको बैक्टीरिया को दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं अगेन, जिनके पास स्लाइमी लेयर होती है यानी कि लूज शीथ, थिक एंड टफ होती है कैप्सूल। फिर जो सेल वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कोलैप्स होने से बचाती है बैक्टीरिया को, और वो सेमी परमेबल होती है, सबको अंदर आने देती है। वेराज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग अगर बात करें तो वो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल, सबको अंदर नहीं आने देती, सिलेक्टिवली परमेबल रहती है, सबको अंदर नहीं आने देती, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन जो रहती है वो सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर ही सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम लोग देखेंगे अभी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके बाद ही लेक्चर एंड होने वाला है, तो डोंट वरी। फिर जो मीजोजोम रहता है, इंक्लूजन्स होती है, यूनिक कैरेक्टर, और मीजोजोम होता है एक, जो मीजोजोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है। किस किस फॉर्म में होती है, तो वेसल की फॉर्म में, ट्यूब्यूल की फॉर्म में, लैमेला की फॉर्म में। फिर दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को ऊपर याद रखो ऐसे, सेल वॉल ऊपर होती है तो सेल वॉल फॉर्मेशन, नीचे डीएनए रेप्लिकेशन, खुद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, ऑर्गेनलीज के काम रेस्पिरेशन, सेक्रीशन, एंजाइम कंटेंट, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो होती है उनमें अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि क्रोमैटोफोर्स जो कि कंटेन करते हैं पिगमेंट्स जो होती है ना, इनके अंदर होती है। तो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है। तो पिगमेंट जो होती है ना, ये क्रोमैटोफोर्स के अंदर होती है, जो कि मीजोजोम्स के अलावा और एक एक्सटेंशन है, किसमें, तो साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ। उसके बाद बैक्टीरिया के मोटिलिटी नॉन मोटिलिटी पे बात की गई। मोटाइल है तो फ्लैजिला है, फ्लैजिला कैसे हो सकता है, उसका शेप तो फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट सेल सरफेस के बाहर भी आ जाता है। फिर वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। बिसाइड फ्लैजिला पिल्ली होती है, फिमरिए होती है। पिल्ले क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि मोटिलिटी में दोनों भी रोल प्ले नहीं करते। फिमरिए क्या रहते हैं, फिमरिए स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स रहते हैं, स्ट्रक्चर्स जो कि मदद करते हैं अटैचमेंट में, ये स्प्राउट आउट करते हैं सेल्स से दोनों भी। फिर मदद करते हैं ये किसमें, अटैचमेंट्स से, तो रॉक्स एंड स्ट्रीम्स या फिर होस्ट टिश्यू के अटैच होना हो तो ये मदद करते हैं। और इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं है, मोटिलिटी का फ्लैजिला का ही सिर्फ मोटिलिटी में रोल है। उसके बाद आता है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़े एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि मीजोसोम्स ही एक है प्रोकैरियोट्स में, तो उससे एसोसिएट होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो मीजोसोम से रहता है, उनका साइज़ 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर तक रहता है। फिर 70s बड़ा सब यूनिट 50s होता है इनका, और छोटा वाला 30s होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। जब ये एक एमआरए के ऊपर राइबोसोम जुड़ते हैं तब उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और ये पॉलीसोम जो होता है, राइबोसोम जुड़े वो किस में मदद करते हैं, एमआरएनए को कन्वर्ट करने में, प्रोटीन में, ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर यूनिक कैरेक्टर की बात की थी, वो है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या रहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व मटेरियल रहता है ना, वो स्टोर किया जाता है, जिनमें वो होती है इंक्लूजन बॉडीज़। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ भी नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। फिर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है ये। फिर फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एग्जांपल है, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। इसके अलावा छोटे छोटे गैस वैक्यूल्स भी रहता है, जो कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, इनमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पड़े रहते हैं, फ्री पड़े रहते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, गैस वैक्यूल्स रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
यस, उससे पहले ये थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड अब तक हम लोगों ने क्या देखा, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इंक्लूजन बॉडी देखी, ठीक है। सेंट्रोसोम प्लांट्स में, राइबोसोम दोनों में, इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरिया में। उसके बाद हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। सो इंक्लूजन बॉडीज, उससे पहले मैं बताऊँ, इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया में नहीं, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम आएंगे यूकैरियोट्स पे। तो यूकैरियोट्स में कौन कौन होता है, बैक्टीरिया को छोड़ के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, सारे, ठीक है। इनमें क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है साइटोप्लाज्म की, क्यों, क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है। फिर इनके अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। जेनेटिक मटेरियल बड़ी ऑर्गेनाइज रहती है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है न्यूक्लियस में एंड ऑल, क्रोमोसोम्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं इनके, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनके क्रोमोसोम्स के अंदर। और यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं है बिल्कुल भी, प्लांट अलग है, एनिमल अलग है। प्लांट क्यों, प्लांट के अंदर क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहता है, वेरएज सेंट्रियोल्स जो रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं प्लांट्स में। और ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, सेल वॉल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सब एब्सेंट रहता है एनिमल्स के अंदर। देखो, तो प्लास्टिड और प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आता है। अगर आपको यहाँ पे लिखा नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूँ, प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आता है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं अभी यहाँ पे। यस, ये ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, बस और कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग नाउ। वापस एक बार रिपीट कर लूँ क्या, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, प्लांट एंड एनिमल्स are different as the former possess cell wall, plastid, large central vacuole which is absent in animals, and animals on the other hand have centriole which are absent in almost all the plants। सारे plants में almost absent ही रहता है, ठीक है। So let's start with the next thing. So let us now look at the individual cell organelles to their स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दोनों को देखेंगे, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट के दोनों के ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में होता ही क्या है, बचा ही क्या है, मतलब सिर्फ राइबोसोम बचा है, सेल मेम्ब्रेन भी बची है। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होती है। और प्रोकैरियोट, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स जो दोनों में प्रेजेंट होती है वो इतनी है, सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बाकी सारी यूकैरियोट की। तो अब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन RBC enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। तो ये मेनली किसका स्ट्रक्चर है, तो ह्यूमन RBC का, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। These studies showed that the cell membrane is, हाँ चालू किया ना, मुझे लगा रिकॉर्डिंग नहीं चालू की। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and प्रोटीन्स। तो मेनली इनका कंपोजिशन क्या होता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। बाद में इन्हें पता चला था कि कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। द मेजर लिपिड आर द फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहती है, वो हमें पता है। ऑल्सो लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड ऑन द आउटर साइड एंड द टेल्स टूवर्ड्स द इनर साइड। क्यों ऐसा रहता है, तो ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो फिर पोलर हेड जो रहता है वो आउटर साइड पे रहेगा और टेल उनके अंदर रहेगी, क्योंकि टेल जो रहती है ना वो हाइड्रोफोबिक रहती है ऑन द, because the hydrophobic tail out towards the
इनर पार्ट, और जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, हेड हाइड्रोफिलिक रहता है, ठीक है। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वेस इन्वायरमेंट। तो उसके लिए ये चीज़ें होती है, ठीक है। यार क्या है, आजा भाई। हाँ yes, in addition to phospholipids membrane also contains cholesterol। तो phospholipid होती है, cholesterol is also present। यहाँ पे मैं बता दूँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहाँ है भाई, हाँ ये इससे कवर कर लो, ठीक है। फिर लेटर biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess proteins and carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, प्रोटीन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया ऊपर। The ratio of protein and lipid varies considerably in all the cell types. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 42% lipid। तो ये assertion reason में आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा confusion होगा कि एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया। ये रेशियो सिर्फ एरिथ्रोसाइट के लिए ही है, ये 52:40 का, ठीक है। ये प्रोटीन का है और ये लिपिड का है, ठीक है। तो प्रोटीन ज़्यादा रहता है, क्यों ज़्यादा रहता है प्रोटीन? क्योंकि वो अंदर भी गढ़ा रहता है ना, तो इसके लिए वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये सिर्फ आरबीसी के लिए, ओनली फॉर आरबीसी, इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर आरबीसी, ठीक है। तो ये इसकी एक बात है। और मैं क्या बता रही थी, ये असर्शन एंड रीजन जैसा भी पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड, वेरी हाई चांसेस आर देयर ऑफ दे आस्किंग इट एज अ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। तो प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, अगेन इंटीग्रल भी हो सकता है और पेरिफेरल। इंटीग्रल जो अंदर रहता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, पार्शियली या फिर टोटली, और पेरिफेरल सिर्फ लाई करता है सरफेस के ऊपर। तो ये डिफरेंस होता है। और शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जो उनको बाद में पता चला था केमिकल इन्वेस्टिगेशन से, कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट शुगर। एंड पेरिफेरल प्रोटीन इज ऑल्सो देयर, दिस इज पेरिफेरल। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई। कोलेस्ट्रॉल ऐसे छोटे 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 टेल्स पर रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे रहते हैं? टेल पे। टेल क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर रहती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी रहती है। तो ऐसे याद रखना होगा आपको ये चीज़, बस, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है अभी यहाँ पे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। तो ये improved model हमने ऊपर ही अभी देखा है डायग्राम, वो किसने दिया गया है? सिंगर एंड निकोल्सन 1972 में। और ये बड़ा वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। कैसे? वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक यानी कि फ्लूइड है पर वो पूरी तरह से पानी नहीं है, तो फ्लूइडिश है। मोजाइक मॉडल हिलता है वो, क्यों? क्योंकि उसके कॉसी फ्लूइड नेचर की वजह से। जो लिपिड्स होती है उनका कॉसी फ्लूइड नेचर है बड़ा। तो द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। अब जैसे कि टेल नॉन पोलर है तो उसके अंदर से पोलर मॉलिक्यूल नहीं जा सकते, यानी कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन से जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो पोलर है ना, लिपिड पोलर नहीं है, लिपिड की टेल पोलर नहीं है, बट प्रोटीन तो पोलर है। प्रोटीन तो पोलर है तो उससे जा सकता है। हाँ मैं लिख दूँ, जो टेल है ना अपनी, यहाँ पे लिख दूँ ऑन टेल। ये जो टेल कहाँ गई? हाँ टेल है ना, ये नॉन पोलर है,
ठीक है। वेरास ये जो प्रोटीन है ये पोलर, तो इसकी बड़ी मदद होती है, ठीक है। प्रोटीन की जो पोलर चीज़ें होती है ना वो प्रोटीन से ही जाती है, और प्रोटीन की मूवमेंट विस्कोसिटी फ्लूइड नेचर की वजह से होती है, लैटरल मूवमेंट होती है। वो भी कौन सी मूवमेंट होती है? लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द फ्लूइडिटी। तो जो जैसे वो मूव करते हैं, जो एबिलिटी है उनकी मूव करने की, उसको क्या कहा जाए? फ्लूइडिटी कहा जाए। कहा गया है, कहा जाया, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है? फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी कहा गया है, ठीक है। तो यस इट इज़ डन नाउ। उसके बाद आता है द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सेक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो ये जो फ्लूइडी नेचर है इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अंदर बाहर आती रहती है चीज़ें। सेल डिवीजन के वक्त प्रोटीन्स जब बनते हैं तब, सेल ग्रो होने वाला है तब, तो मूवमेंट तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो जो इसलिए ये फ्लूइड नेचर बड़ा काम का है। तो जो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो मैंने अभी कहा आपको उसकी ट्रांसपोर्ट के बारे में हम अभी बातें कर रहे थे। तो मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ, मतलब बाहर जो प्रेजेंट है उनके लिए वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, अंदर के जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए वो नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट, मतलब दोनों साइड के इधर, इधर मतलब ये भी और वो भी, इधर साइड ऑफ इट। तो मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बिना एनर्जी के मूव किया जा सकता है, एनर्जी के साथ भी मूव किया जा सकता है। तो एनर्जी के बिना करते तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एनर्जी के साथ करते तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज हायर से लोअर में जाएंगे वो, यानी कि अंदर से बाहर जाएंगे वो, ठीक है। तो वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो अब हमने तीन चीज़ें देखी। एक तो पहला देखा हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जो कि है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोगों ने देखा न्यूट्रल सॉल्यूट्स, जो कि कैसे मूव करेंगे? सिंपल डिफ्यूजन के मदद से अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने वाले हैं वो लोग। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या? वाटर, वाटर भी वैसे ही मूव करने वाला है हायर से लोअर, ठीक है। वाटर भी वैसे ही मूव करने वाला है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और जिसे कहा गया है ऑस्मोसिस। क्या कहा गया है? ऑस्मोसिस कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डन। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules that are transferred across the membrane against a concentration gradient that is lower to higher concentration. Ions को along the concentration नहीं, against the concentration भेजा जाता है, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। एटीपी यूज़ होती है। सच अ ट्रांसपोर्ट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड। तो अभी हम लोगों ने दो देखा, कहा गया, हाँ, पोलर मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन लगता है, और against the concentration gradient ATP, ये डन।
सो यस, अब जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, आरबीसी के मेम्ब्रेन को देखा, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ये बाद में पता चला, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेल्स के ऊपर होते हैं। फिर लिपिड की जैसे कि वो पोलर रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना रहता है, और उसकी टेल अंदर के साइड पे रहती है और हेड बाहर के साइड पे। क्यों? क्योंकि हेड इज़ हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज़ हाइड्रोफोबिक। फिर कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहती है। फिर उसके बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के हम लोगों ने रेशियो को देखा, तो 52% प्रोटीन रहता है और 40% लिपिड रहता है। फिर उसके बाद एरिथ्रोसाइट की बात हो रही है, ये आरबीसी के अंदर ही होता है, ठीक है। फिर पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। डन। उसके बाद हम लोगों ने ये डायग्राम को देखा। ये डायग्राम किसने दिया है? ये डायग्राम दिया है सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। इसे कहा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज फ्लूइड मोजाइक मेडल, क्योंकि इसका कॉसी फ्लूइड नेचर होता है, जो कि जो बाइलेयर होती है उसके अंदर लैटरल मूवमेंट अनेबल करता है प्रोटीन के लिए, और जो कैपेसिटी होती है जैसे वो मूव करता है, एबिलिटी टू मूव इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी, ठीक है। Their ability to move is called as fluidity। तो फ्लूइड नेचर रहता है मेम्ब्रेन का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सेल ग्रोथ होती है उसकी वजह से, इंट्रासेलुलर जंक्शन बनते हैं उसकी वजह से, फिर सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है इसका किसमें, तो ट्रांसपोर्ट करने में मॉलिक्यूल्स के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। न्यूट्रल सोल्यूट, सिंपल डिफ्यूजन के विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर। फिर ऑस्मोसिस भी विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर, वाटर का डिफ्यूजन होता है यहाँ पे। और पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एज लिपिड बाइलेयर इज नॉन पोलर, दे कैन नॉट पास थ्रू द lipid bilayer, so proteins are there, and proteins are polar, so polar molecules can pass through polar things, so protein, they pass through protein integrated हो या peripheral, and they pass across the membrane, अंदर जाना, बाहर जाना, कहाँ पे भी जाना। फिर उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो मूविंग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स, ये कौन करता है? ये आयंस करते हैं, ठीक है। आयंस में होता है ये चीज़, मूविंग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एनर्जी लगती है बड़ी, और क्या होता है ना, एनर्जी यूज़ होती है और एटीपी यूज़ होती है, ठीक है। एटीपी यूज़ होती है और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसका एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है। उसके बाद हम लास्ट इस पे आते हैं, जो कि है सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर इज द सेल वॉल। तो सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ये किसी को याद नहीं रहता, पर सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसका काम एक ही होता है, प्रोटेक्शन। So yes, a cell wall, as you may recall, a cell wall is a non-living rigid structure, and yeah, इसे ही छोटा कर देती हूँ। A non-living rigid structure called as cell wall forms outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives shape to the cell but also protects the cell from mechanical damage and infection. It also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable molecules. फिर algae have cell wall, कंपोजिशन बताई गई है अभी सेल वॉल की डायरेक्टली। तो कंपोजिशन क्या है सेल वॉल की? जो algae की सेल वॉल होती है ना, मैं बताती हूँ आपको। जो एल्गी की सेल वॉल होती है ना, वो किससे कंपोज होती है? तो उसके अंदर होते हैं मैनन्स, इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल प्लांट्स में जो रहता है ना सेल वॉल, उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल
द प्राइमरी वॉल इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो यंग प्लांट सेल होती है ना, उनकी जो प्राइमरी वॉल रहती है उनकी, वो कैपेबल रहती है ग्रोथ के। तो वो क्या करती है, जब वो विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर, जैसे सेल मैच्योर करता जाता है वो कम कम होती जाती है, और सेकेंडरी वॉल होती है फॉर्म, पर कहाँ होती है, अंदर साइड होती है, हमेशा अंदर के साइड के, फॉर्म ऑन द इनर टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं होती है सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे। मतलब ये सेल है और ये प्राइमरी सेल वॉल है, थोड़ा ऊपर बना दूँ तो जो सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे अंदर बनेगी, ऐसे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। कहाँ पे, इनर साइड टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। बस उसके बाद द मिडल लैमेला इज अ लेयर। हाँ, तो दो जो सेल्स रहते हैं ना, अभी यहाँ पे और एक सेल बना दूँ मैं, यहाँ पे और एक सेल अगर बना दिया मैंने, सपोज कर लो तुम, तो ये जो सेल है ना, वो एक सब्सटेंस से चिपका रहता है जो कांटेक्ट कर सकता है नेबरिंग सेल्स में, और इसके अंदर ऐसे कभी कभी कनेक्शन भी बन जाता है ऐसा। तो अगर ये कनेक्शन बन गया है तो इससे तो प्लाज्मोडेस्माटा करता है, और ये चिपकू जो नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है सारी तरफ, यहाँ भी होगा यहाँ पे भी होगा, अगर जहाँ जहाँ सेल है तो दोनों सेल को कनेक्ट करता है वो सब्सटेंस है मिडल लैमेला, जो कि बना होता है कैल्शियम पेक्टेट से। ठीक है, तो दिस इज मिडल लैमेला दैट इज विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये बताना था मुझे आपको। ये है मिडिल लैमेला, ठीक है, और ये है प्लाज्मोडेस्माटा। बस, और ये मिडल लैमेला किससे बनता है, कैल्शियम पेक्टेट, ये ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो उतनी ज़रूरत नहीं है। तो द मिडल लैमेला इज़ अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। देखो मैंने कहा था आपको, लिखा गया है mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella are transversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. cytoplasm जो होता है ना neighboring cells का, उसको ये connect करती है plasmodesmata। किसको कनेक्ट करती है, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म को ये कनेक्ट कर रही होती है प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब अगर आपने ऐसे भी बना दिया ना अभी स्ट्रक्चर, किससे ऐसे, तो भी कुछ हरकत नहीं है, क्योंकि इसका ये सेकेंडरी वॉल बन गई ना, तो इसे अंदर तक तो इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगेन हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग है, फंगी में भी होती है, फंगी में काइटिन होती है, प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स इसके बाहर रहता है। ठीक है, फंगी में काइटिन की रहती है और प्लांट्स में सेल्यूलोज की रहती है बस। और सेल वॉल जो होती है ना, वो सिर्फ शेप ही नहीं देती, सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोटेक्शन, बैरियर, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें भी करती है। एल्गे की सेल वॉल क्या क्या करती है, गैलेक्टिन, मैनिन, सेल्यूलोज और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम पेक्टेट। वेराज जो अदर प्लांट्स होती है इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। ठीक है, पेक्टिन भी होता है और प्रोटीन भी होता है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ भी हो सकती है, जैसे कि वो बड़ा होता जाता है। यंग में प्राइमरी होते हैं, मैच्योर होने पे सेकेंडरी आनी चालू होती है इनर साइड पे टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द साइकिल। उसके बाद मिडल लैमेला दोनों नेबरिंग सेल को ग्लू कर रही होती है या फिर होल्ड कर रही होती है बोल सकते हो, और ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी रहती है मिडल लैमेला। और मिडल लैमेला के अंदर ऐसे मिडल लैमेला मतलब दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ रही होती है, ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। उसके बाद आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि हम
कल करेंगे. सो फॉर टुडे वी आर डन गाइस, एंड या hope you all liked the video, and thank you for everything. Thank you for your support. So yeah, thank you, and bye bye everyone. So yes, bye everyone. Thank you for listening, being with me, and yeah, we will meet tomorrow definitely. So yes, so let's say bye 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 everyone. Bye bye.